خبروں کی تفصیلات کی طرف بڑھیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں الیکشن 2024 کی۔ الیکشن ہو گیا، رزلٹ بھی آ گئے، اب کس کی ہوگی اگلی حکومت، سب کو انتظار۔ وفاق اور پنجاب میں حکومت سازی کے لیے جوڑ توڑ جاری۔ نواز شریف کی آج اسلام آباد میں چودھری شجاعت حسین سے ملاقات کا امکان۔ گزشتہ رات لیگی وفد نے شہباز شریف کی قیادت میں آصف زرداری اور بلاول بھٹو سے لاہور میں ملاقات کی۔ حکومت سازی کے حوالے سے سیاسی تعاون پر اصولی اتفاق بھی کیا گیا۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں لیاقت علی سے۔ جی لیاقت۔ آج بالکل وفاق اور پنجاب میں حکومت سازی کے معاملے پر جوڑ توڑ جاری ہے۔ مسلم نون، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے رابطے ہو رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور ایک ہی نہ صرف سیاسی جماعتیں آپس میں ملاقاتیں کر رہی ہیں بلکہ آزاد ارکان کو توڑنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اب تک 4 ارکان قومی اسمبلی اور 5 ارکان پنجاب اسمبلی جو ہیں جو آزاد حیثیت میں منتخب ہوئے وہ مسلم نون میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں۔ آج لاہور سے جو ہے وہ اہم ترین قیادت جو ہے اسلام آباد منتقل ہو رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، سابق صدر مملکت آصف علی زرداری بھی کچھ دیر میں جو ہے وہ لاہور سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوں گے، جہاں پر وہ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کریں گے اور وہاں پر پیپلز پارٹی جو ہے گزشتہ رات مسلم نون کے ساتھ ہونے والی ملاقات اور مشاورت میں جو تجاویز سامنے آئی ہیں وہ CEC کے سامنے رکھ کر اس کی منظوری حاصل کرے گی۔ اسی طرح آج بعد دوپہر چودھری شجاعت حسین بھی اسلام آباد پہنچ جائیں گے اور اسلام آباد میں ان کی مسلم نون کی قیادت سے ملاقات متوقع ہے۔ کل چودھری شافع حسین نے بتایا تھا کہ یہ ملاقات آج اسلام آباد میں شام کو ہوگی۔ اب یہ ابھی کنفرم ہونا باقی ہے کہ آج ہی چودھری شجاعت حسین تو اسلام آباد پہنچ جائیں گے، لیکن کیا یہ ملاقات آج ہی ہوتی ہے یا کل پہ چلی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پنجاب میں جو ہے وہ آزاد ارکان کا جو کہ PTI کے ہم خیال ارکان گنے جاتے تھے، شینا گروپ جس کو کہا جاتا تھا، اس کی قیادت بھی جو ہے وہ جوڑ توڑ کے لیے متحرک ہے۔ تو یوں سیاسی منظرنامے پر ایک طرف جوڑ توڑ جاری ہے تو دوسری جانب آزاد ارکان سے بھی رابطے کیے جا رہے ہیں کہ ان کو توڑا جا سکے۔ جہانگیر خان ترین بھی اس حوالے سے متحرک ہیں اور عبدالعلی خان بھی اس ضمن میں رابطے کر رہے ہیں۔ تو یوں اب پیپلز پارٹی اور مسلم نون ایک طرف شراکت اقتدار کا فارمولہ طے کرنے میں مصروف ہے تو دوسری طرف جو ہے وہ آزاد ارکان کو توڑنے کے لیے بھی حکمت عملی چل رہی ہے۔ شکریہ لیاقت۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا مولانا فضل الرحمان کو ٹیلی فون پارٹی ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں کا سیاسی صورتحال اور حکومت سازی کے حوالے سے مشاورت، دونوں رہنماؤں کی ملاقات بھی جلد متوقع ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیف حسن رضا سے۔ جی حسن، بتائیے اس بارے۔ جی بالکل، مسلم لیگ نون کا حکومت سازی کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف نے فضل الرحمان کو ٹیلی فون کیا اور دونوں رہنماؤں کا ملک کی سیاسی صورتحال حکومت سازی کے حوالے سے مشاورت کی گئی۔ دونوں رہنماؤں کی آج ہی جو ہے وہ ملاقات متوقع ہے، جس کو دیکھتے ہوئے مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ اسلام آباد کچھ ہی دیر بعد روانہ ہونے کا ان کا امکان ہے اور مولانا فضل الرحمان بھی جو ہے اس وقت جو کہ خیبر پختونخوا میں ہیں وہاں سے وہ بھی اسلام آباد جو ہے وہ آج پہنچ جائیں گے، جس میں جو آج جو ٹیلی فون پہ گفتگو ہوئی اس میں بلوچستان میں حکومت سازی، وفاق میں حکومت سازی اور خیبر پختونخوا سے متعلق اہم معاملہ زیر غور لائے گئے۔ ٹھیک ہے حسن، بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وفاق اور صوبوں میں حکومت سازی کے لیے سیاسی جوڑ توڑ جاری ہے۔ نواز شریف کی آج چودھری شجاعت حسین سے ملاقات کا امکان۔ نواز شریف وفاق اور پنجاب میں حکومت سازی کے لیے تعاون کی درخواست کریں گے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں زاہد عابد سے۔ جی زاہد۔ قومی انتخابات سال 2024 کا انعقاد ہو چکا، جس کے بعد اب گیم یہ ہے کہ کون بنے گا وزیر اعظم، جس کے لیے تمام تر پارٹیاں جو ہیں اپنے اپنے کارڈز کھیل رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون کو کہ اس میں فیورٹ خیال کی جا رہی ہے، لیکن اس کو بھی ابھی تک مطلوبہ اکثریت حاصل نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے اسے بھی دوسری پارٹیوں یا آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کر ہی حکومت بنانی ہوگی۔ اس کے لیے MQM سے ان کے ایک مرتبہ بات چیت ہو چکی ہے، پیپلز پارٹی سے بات چیت ہو چکی ہے، جبکہ مسلم لیگ کاف سے آج اسلام آباد میں ان کی بات چیت ہونا متوقع ہے۔ کل گزشتہ روز جو پیپلز پارٹی سے ملاقات ہوئی اس میں بھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا تھا، کیونکہ پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی الیکشن سے پہلے بلاول بھٹو زرداری کو اپنا وزیر اعظم نامزد کر چکی ہے، اس لیے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہی دوبارہ اس فیصلے پر نظر ثانی کرے گی کہ اس نے اپنا وزیر اعظم بنانا ہے یا کسی کے ساتھ مل کر اتحاد
करना है, जिसके लिए जो कोशिशें हैं वो यकीनी तौर पर जारी हैं। मुस्लिम लीग नून सेक्रेटरीट में भी सरगर्मियाँ अपने तौर पर जारी हैं, लेकिन आज ज़्यादातर सियासी सरगर्मी इस्लामाबाद में देखी जा रही है, क्योंकि मुस्लिम लीग काफ और पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो वहाँ पर मौजूद है और वहाँ पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत से भी इनके मुज़ाकरात होंगे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल जो है इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार, ये तीनों धड़े इस पोजीशन में हैं कि किसी के साथ मिलकर हुकूमत बना सकते हैं। अब देखना यह है कि कौन सी पार्टी बेहतर ऑफ़र करती है दूसरी पार्टियों को, जिसके साथ मिलकर वो हुकूमत बना सकती है। और इसके लिए तमाम जो बड़ी पार्टियां हैं वो अपने कार्ड्स खेल रही हैं और छोटी पार्टियों के साथ उन्हें इंगेज करने की कोशिश कर रही हैं, ताकि वफाकी हुकूमत के जो एक शक्ल और सूरत है उसे हतमी शक्ल दी जा सके। ताहम पंजाब की हद तक ये सूरत से हाल तकरीबन वाज़े होती हुई नज़र आ रही है कि मुस्लिम लीग नून पंजाब में अपनी हुकूमत बनाएगी और अपना वज़ीर आला लाएगी, लेकिन वफाक की हद तक ताहाल एक कन्फ्यूजन बरकरार है कि कौन सी जमात, कौन होगा वज़ीर आज़म और किस तरह ये इत्तेहाद काम करेगा। आपका बहुत शुक्रिया। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ मरियम नवाज समेत दीगर की इलेक्शन में कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। लाहौर हाईकोर्ट में समाअत कुछ देर बाद दोबारा शुरू होगी और इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्तों की तफसील फौरी तलब कर ली है। जस्टिस अली बाकी नजफी समाअत करेंगे। तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकी नजफी ने मरियम नवाज़, ख्वाजा आसिफ और उनके साथ साथ हमजा शहबाज, ओन चौधरी और जो हैं दीगर जो अरकान हैं, जिसमें अब्दुल अलीम खान के इंतहाबी नताइज के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्तों पर समाअत की। तो इस मौके पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने इन दरख्वास्तों की मुखालफत की और ये कहा कि इन तमाम दरख्वास्तों का पहला फ़ोरम रिटर्निंग ऑफिसर, फिर इलेक्शन कमीशन और फिर ट्रिब्यूनल बनता है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने कहा कि बताएं अब तक इलेक्शन कमीशन के पास बराह रास्त कितनी दरख्वास्तें आ गई हैं। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि उनके पास 100 से ज़्यादा दरख्वास्तें आ चुकी हैं, जिन पर मुतअद्दिद दरख्वास्तों पर फ़ैसले भी जारी किए जा चुके हैं और इस हवाले से इलेक्शन कमिश्नर रोज़ाना की बुनियाद पर दरख्वास्तों पर समाअत कर रहा है। दौरान समाअत हल्का NA 119 से मरियम नवाज़ के कागजात, मरियम नवाज़ के इंतहाबी नताइज के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत की। तो आफ्ताब बाजवा ने यह बताया कि शहजाद फ़रूक ने जब मरियम नवाज़ के नतीजे को चैलेंज किया तो इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाते हुए शहजाद फ़रूक को गिरफ़्तार कर लिया गया और दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आफ्ताब बाजवा एडवोकेट ने कहा कि ये सब कुछ महारानी के हुक्म पर हुआ, जिस पर जस्टिस अली बाकर नजफी ने कहा कि मिस्टर बाजवा, आपने जो कहना है बाहर जाकर मीडिया पर बात करें, लेकिन ये कोई स्टेज नहीं है, ये अदालत है। अगर आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो अदालत आपकी दरख्वास्त को नहीं सुनेगी। दौरान समाअत आज़म नज़ीर ताड़र और आफ्ताब बाजवा एडवोकेट के दरमियान तलख कलामी भी हुई। ताहम अदालत की मदाखलत से दोबारा आफ्ताब बाजवा ने यह इस्तदा की कि फॉर्म 45 के तहत तमाम जो रिज़ल्ट है NA 119 का दोबारा तैयार करने के अहकाम जारी किए जाएँ। ताहम अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील से जितने भी नताइज के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन में आई हैं उनका रिकॉर्ड तलब करते हुए कार्रवाई कुछ देर तक मुलतवी कर दी है। जी ठीक है इशफाक, बहुत शुक्रिया। लाहौर सियासी सरगर्मियों का महवर बन गया। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो से शहबाज शरीफ की वफ्द समेत बिलावल हाउस में मुलाकात। कायदीन का मुल्क को सियासी इस्तेहकाम दिलाने पर इत्तेफाक राय। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और मुस्तकबिल में सियासी ताउन पर तफसीली बातचीत भी की गई है। आपको बता रहे हैं कि लाहौर इस वक्त सियासी इस्तेहकाम के हवाले से अहम इलाका बन चुका है और मजमूई सूरत हाल और मुस्तकबिल में सियासी ताउन पर बातचीत की गई है। दो अहम रहनुमाओं और दो अहम पार्टियों की जानिब से सियासी सरगर्मियों का महवर लाहौर बन चुका है। बिलावल हाउस में मुलाकात हुई है। सदर पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बिलावल हाउस लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में दोनों जमातों ने सूरत हाल पर मुशावरत की और तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात के जारी मुश्तरका एलामिया के मुताबिक मुल्क की मजमूई सूरत हाल और मुस्तकबिल में सियासी ताउन पर तफसीली बातचीत की गई। कायदीन ने मुल्क को सियासी इस्तेहकाम से हमकिनार करने के लिए सियासी ताउन करने पर इत्तेफाक किया। पीपल्स पार्टी की क़यादत का कहना था कि मुस्लिम लीग नून की तजावीज़ को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में सामने रखेंगे।
रहेंगे। PP कायदीन ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, अवाम की अक्सरियत ने हमें मैंडेट दिया है, हम अवाम को मायूस नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग नून के वफ्द में आजम नजीर तारड़, अयाज सादिक, एहसन इकबाल, राना तनवीर, ख्वाजा साद रफीक, मलिक अहमद खान, मरीम औरंगजेब और शिजा फातिमा शामिल थे। कैमरामैन अदनान के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इलेक्शन के मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ की बड़ी विकेट गिरा दी है। और आगे बढ़े और आपको बताएं कि इलेक्शन के बाद PTI को पहला बड़ा झटका और NA 121 से नौमुंतखब आज़ाद उम्मीदवार वसीम कादिर मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज से वसीम कादिर की मुलाकात भी हुई है। कायद नून लीग नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार भी किया गया है। मरियम नवाज का वसीम कादिर के फैसले का खैर मकदम और मुबारकबाद दी गई। वसीम कादिर ने NA 121 से नून लीग के शेख रोहेल अस्कर को शिकस्त दी थी। आम इंतखाबात के बाद आज़ाद अरकान के हवाले से PTI को झटका। लाहौर से तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता नौमुंतखब रुकन कौमी असम्बली और PTI लाहौर के जनरल सेक्रेटरी वसीम कादर मुस्लिम नून में शामिल हो गए। वसीम कादर की पाकिस्तान मुस्लिम नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज से जाती उमरा में मुलाकात। वसीम कादर ने बाज़ाब्ता मुस्लिम नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया। वसीम कादर का कहना था कि हल्का के अवाम और दोस्तों की मुशावरत से नून लीग में शामिल हो रहा हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करता हूँ। मरियम नवाज का वसीम कादर के फैसले का खैर मकदम। मैं वसीम कादर जनरल सेक्रेटरी PTI लाहौर था। मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए मैं दोबारा मुस्लिम लीग नून में ज्वाइन कर लिया मैंने। वसीम कादर ने आम इंतखाबात में मुस्लिम नून के उम्मीदवार शेख रोहेल अस्कर को NA 121 में शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की थी। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक और सियासी कामयाबी। पंजाब असम्बली के हल्का PP 97 चनियोट से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद साकिब खान चद्दड़ मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। मोहम्मद साकिब खान चद्दड़ के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से मुलाकात की और पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। साबिक वज़ीर आज़म और सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने साकिब खान चद्दड़ के फैसले का खैर मकदम किया और मुबारकबाद दी। साकिब खान चद्दड़ 42,959 वोट लेकर हल्का PP 97 चनियोट से कामयाब हुए थे। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक लाहौर में कौमी असम्बली की 14 में से 9 सीटें नून लीग ने जीत ली। 2 नशिस्तें नून लीग की हमायत याफ्ता IPP जबकि 3 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवार लेने में कामयाब हुए। नवाज शरीफ ने यास्मीन राशिद और सरदार लतीफ़ खोसा ने ख्वाजा साद रफीक को शिकस्त दी है और NA 127 में बिलावल भुट्टो जरदारी तीसरे नंबर पर आए हैं। लाहौर में सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज जारी। 21 सीटों पर नून लीग कामयाब। 8 हलकों में आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया जबकि एक पर IPP के उम्मीदवार ने कामयाबी समेटी। लाहौर के सूबाई हलके PP 145 से मुस्लिम लीग नून के समीउल्लाह खान ने 42,579 वोट लेकर मैदान मार लिया। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद यासर 38,262 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PP 146 से मुस्लिम लीग नून के गजाली सलीम भट्ट ने कामयाबी हासिल की। गजाली सलीम भट्ट ने 30,587 वोट हासिल किए। आज़ाद उम्मीदवार जुनैद रज़ाक 28,515 वोट हासिल कर सके। PP 147 से नून लीगी उम्मीदवार हमजा शहबाज ने 51,838 वोट लेकर कामयाबी अपने नाम की। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद खान मदनी 46,494 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PP 148 से मुस्लिम लीग नून के मुजतबा शजाउर रहमान 37,998 वोट लेकर कामयाब हो गए। आज़ाद उम्मीदवार सबा देवान 31,560 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहीं। PP 149 से नून लीग के हमायत याफ्ता IPP के उम्मीदवार अब्दुल अलीम खान कामयाब करार पाए। अब्दुल अलीम खान ने 51,756 वोट हासिल किए। आज़ाद उम्मीदवार हाफिज ज़ीशान 47,998 वोट हासिल कर सके। PP 150 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ख्वाजा इमरान नज़ीर 34,956 वोटों से कामयाब हुए। आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल करीम खान 30,314 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आए। PP 151 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सोहेल शौकत भट्ट जीत गए। सोहेल शौकत भट्ट ने 38,232 वोट हासिल किए। आज़ाद उम्मीदवार हमाद अली 15,839 वोट हासिल करने में कामयाब रहे।
PP152 से भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलक मोहम्मद वहीद 34,664 वोट लेकर कामयाब करार पाए। आजाद उम्मीदवार नुमान मजीद 29,676 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PP153 से मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा सलमान रफीक ने 35,232 वोट लेकर कामयाबी अपने नाम की। आजाद उम्मीदवार मियां अवैस अंजम 33,027 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे और PP154 से नून लीग के मलक गुलाम हबीब आवान ने 26,014 वोट लेकर कामयाबी समेटी। आजाद उम्मीदवार शकील अहमद 24,156 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। PP155 से आजाद उम्मीदवार शेख इम्तियाज 36,717 वोट लेकर कामयाब करार पाए। मुस्लिम लीग नून के नईम शहजाद 30,898 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। PP156 से आजाद उम्मीदवार अली इम्तियाज वड़ाइच 54,031 वोट लेकर कामयाब रहे। मुस्लिम लीग नून के यासिन सोहल 35,114 वोट हासिल कर सके। PP157 से आजाद उम्मीदवार हाफिज फरत अब्बास 45,036 वोट लेकर कामयाब करार पाए। नून लीग के मियां नसीर ने 27,039 वोट हासिल किए। PP158 से मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कामयाबी समेटी। शहबाज शरीफ ने 38,642 वोट हासिल किए। उनके मद्दे मुकाबल यूसुफ वली ने 23,847 वोट हासिल किए और दूसरे नंबर पर रहे। PP159 से नून लीग की मरियम नवाज 23,354 वोटों के साथ फातेह करार पाई। आजाद उम्मीदवार महर शराफत अली 21,191 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PP160 से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलक असद अली 26,781 वोट लेकर कामयाब रहे। आजाद उम्मीदवार आजम खान न्याजी 21,249 वोट हासिल कर सके। PP161 से आजाद उम्मीदवार फरख जावेद मून 46,947 वोट लेकर फातेह ठहरे। नून लीगी उम्मीदवार उमर सहेल ज़िया भट्ट ने 28,855 वोट हासिल किए। PP162 से मुस्लिम लीग नून के शहबाज अली खोखर 43,422 वोट लेकर पहले नंबर पर और आजाद उम्मीदवार शबीर अहमद 40,488 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। PP163 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार इमरान जावेद 23,120 वोट लेकर कामयाब ठहरे। आजाद उम्मीदवार अजीमुल्लाह खान 21,778 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PP164 से मुस्लिम लीग नून के मियां शहबाज शरीफ 27,099 वोट लेकर फातेह करार पाए। आजाद उम्मीदवार मोहम्मद यूसुफ ने 25,919 वोट हासिल किए। PP165 से आजाद उम्मीदवार अहमद रशीद भट्टी 29,390 वोट लेकर कामयाब ठहरे। नून लीग के शहजाद नजीर 28,427 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। PP166 से नून लीग के उम्मीदवार मलक अनस महमूद 32,270 वोटों के साथ कामयाब ठहरे। आजाद उम्मीदवार खालिद महमूद गुज्जर 30,611 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PP167 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार इरफान शफीक खोखर 23,248 वोट लेकर कामयाब ठहरे। आजाद उम्मीदवार अम्मार बशीर ने 21,169 वोट हासिल किए। PP168 से मुस्लिम लीग नून के फैसल अयूब 32,727 वोट लेकर कामयाब हो गए। मलक नदीम अब्बास 27,577 वोट हासिल कर सके। PP169 से नून लीग के उम्मीदवार मलक खालिद परवेज खोखर 85,018 वोट लेकर कामयाब रहे। मियां महमूद रशीद ने आजाद हैसियत में 62,805 वोट हासिल किए। PP170 से आजाद उम्मीदवार हारून अकबर 64,143 वोट लेकर फातेह करार पाए। मुस्लिम लीग नून के राना अहसन शराफत 40,661 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। PP171 से आजाद उम्मीदवार मियां असलम इकबाल 61,847 वोटों से कामयाब ठहरे। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार महर इश्तियाक अहमद 36,955 वोट हासिल कर सके। PP172 से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद को शिकस्त हो गई। आजाद उम्मीदवार मिसबा वाजिद 31,378 वोट लेकर कामयाब करार पाए। राना मशहूद 28,647 वोट हासिल कर सके। PP173 से मुस्लिम लीग नून के मियां मरगूब अहमद 63,236 वोट लेकर कामयाब ठहरे। आजाद उम्मीदवार 50,517 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। PP174 से मुस्लिम लीग नून के बिलाल यासीन ने मैदान मार लिया। उन्होंने 36,265 वोट हासिल किए। आजाद उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद असगर 33,953 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। तमाम कामयाब उम्मीदवारों का हतमी और सरकारी ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। सोहेल कैसर, लाहौर न्यूज़।